हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इतिहास यात्रा विद राम चैनल में। तो दोस्तों, हम हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम जो 15 जून 2025 को हुआ उसके आंसर की सॉल्व कर रहे थे। तो हमारा जो हिंदी का सेक्शन था वो हमने सॉल्व कर दिया है। पार्ट 1 आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो बढ़ते हैं पार्ट 2 की ओर, जो मैथ का सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 21, द एरिया ऑफ द ट्रेपिज्म इज़ 105 centimeter square and its height is 7 centimeter. If one of the parallel sided is longer than the other by 6 centimeter, then the sum of the parallel sided is। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 30 सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ़ 1 cubic meter of ice weight 720 kilo, then the weight of a cubical block of ice 50 centimeter in length is। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, 90। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, अ शॉपकीपर अलॉस अ डिस्काउंट ऑफ 10% टू इट्स कस्टमर and still gain 20% on a product. If the cost price of the product is 450 rupees, then the market price is। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 600। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, द मीन ऑफ ए बी सी डी एंड ई इज़ 28। इफ़ द मीन ऑफ ए सी एंड ई इज़ 24, देन मीन ऑफ वी एंड डी इज़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 34। क्वेश्चन नंबर 25, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट अ बाउंड्री 8 times out of 42 balls he played. The probability that he did not hit a boundary is। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 17/21। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, द अर्थमेटिक मीन and mode of data are 24 and 12 respectively, then its median is। so इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी, 20। क्वेश्चन नंबर 27, मीना बाय अ फिश फ्रॉम अ शॉप for her aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 7 female fish. The probability that the fish taken out is a female fish is। so इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7/12। so question number 28, if two equate angles of a right angle triangle are equal, then each equate angle is। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी, 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 29, a bus travels first 100 kilometer at a speed of 100 kilometer per hour. It covers next 150 kilometer at a speed of 90 kilometer per hour. The average speed of the bus is। so इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 93.75। क्वेश्चन नंबर 30, द नंबर 0.00273 बार इन द फॉर्म P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0 is। so इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी, 271/99,000। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, इन डेसिमल फॉर्म 65/16 इज इक्वल्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4.0625। क्वेश्चन नंबर 32, द सम ऑफ लेंथ width and height of a cuboid is 20 centimeter and the length of its diagonals is 10 centimeter. The surface area of the cuboid is। so इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी, 300। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, अ रेक्टेंगुलर सीट ऑफ पेपर 88 सेंटीमीटर लेंथ एंड 28 सेंटीमीटर विड्थ इज रोल्ड अलॉन्ग इट्स लेंथ एंड अ सिलेंडर इज फॉर्म्ड। द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज। so इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी, 14। क्वेश्चन नंबर 34, a shopkeeper allows a discount of 20% to its customers and still gain 10% on a product if the cost price of the product is
500 rupees, then the market price is. So इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 687.5. Question number 35. If the difference of mode and median of a data is 24, then the difference of median and mean is. So इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 8. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 36. An exterior angle. Question number 36. An exterior angle of a triangle is equal to 100 degree and two interiors opposite angles are equal. Then each of these angle is equal to. So इसका right answer है option number A 40 degree. Question number 37. The rational number between under root 2 and under root 3 is. So इसका right answer है option number V 1.8. Question number 38. The value of 32 की पावर 2.5 is. So इसका right answer है option number A 4. Question number 39. The curved surface area of a right circular cone whose slant height is 10 cm and base is 7 cm. तो इसका right answer है option number A 220 cm. Question number 40. The decimal form of 4 1/8 is. So इसका right answer है option number V 4.125. Question number 41. Find the wrong number in the series. So इसका right answer है option number C 34. Question number 42. In the given series of letters, how many T's are preceded and followed by T? So इसका right answer है option number C 2. Question number 43. Which of the image A to D is next in the sequence? So इसका right answer है option number A. Question number 44. An aquarium containing 17 goldfish, all but 8 died. How many goldfish is the aquarium left with? So इसका right answer है option number V. Question number 45. Pointing toward a boy, Meena said, "He is the only son of my grandfather." How is the boy related to Meena? So इसका right answer है option number B, brother. Question number 46. If today is Wednesday, then what will be the day after 56th day? So इसका right answer है option number A, Wednesday. Question number 47. How many cubes are there in the given figure? So इसका right answer है option number C, 10. Question number 48. A introduced V as the son of the only brother of his father's wife. How is A related to V? So इसका right answer है option number A, cousin. Question number 49. Select the related word from the given alternatives. Medicine, patient, education. So इसका right answer है option number C. Question number 50. In a certain code language, tired is written as 56 and brain is written as 44. How is lazy written in that code language? So इसका right answer है option number D, 64. So इसी के साथ हमारा मैथ का सेक्शन ख़त्म होता है. So बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर. Question number 51. Who has invented the mercury thermometer? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेनियल ग्रेवियल फारेनहाइट. So question number 52. Identify from the following cities where was the first National Institute of Design established in India. So इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद. Question number 53. The headquarter of NATO is in. So इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रुसेल्स.
क्वेश्चन नंबर 54, आइडेंटिफाई द ऑथर ऑफ बुक कुलूत देश की कहानी फ्रॉम द फॉलोइंग। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल चंद प्रार्थी। क्वेश्चन नंबर 55, आइडेंटिफाई द डेट ऑफ इंटरनेशनल योगा डे। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जून 21। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट डज द एब्रीविएशन IMF स्टैंड फॉर। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्वेश्चन नंबर 57, इन विच फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश द कुमारवाह लेक इज लोकेटेड। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मंडी डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, विच फॉलोइंग पास ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड एट द हाईएस्ट एटीट्यूड। हिमाचल प्रदेश का कौन सा निम्नलिखित दर्रा सबसे अधिक ऊंचाई पर है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुगती दर्रा। क्वेश्चन नंबर 59, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग मंथ व्हेन द मिंजर फेयर इज हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस महीने मिंजर का मेला होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अगस्त। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड टू रिप्लेस द IPC इंडियन पेनल कोड। निम्न में से किस नियम ने इंडियन पेनल कोड को प्रतिस्थापित किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, BNS भारतीय न्याय संहिता। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज emerged विनर ऑफ द मैन हॉकी एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2024। निम्न में से कौन सा देश एशियन पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2024 का विजेता रहा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत जो है एशियन पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का विजेता रहा। सो क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन टर्म्स ऑफ वाटर वॉल्यूम। हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी नदी जल की मात्रा के संदर्भ में सबसे बड़ी नदी है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चिनाब। क्वेश्चन नंबर 63, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को सिचुएटेड। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, पेरिस। क्वेश्चन नंबर 64, वंदे मातरम इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बुक। वंदे मातरम निम्न में से किस पुस्तक का हिस्सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, आनंद मठ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड द ज्ञानपीठ अवार्ड 2023। निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, राम भद्राचार्य। अपनी वास्तुकला और महंगे सामानों की खरीदारी के लिए प्रसिद्ध संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आबू धाबी। सो दोस्तों देखो इस क्वेश्चन को कैसे घुमा फिरा के पूछा गया है। जैसे कि ये क्वेश्चन सीधे अक्षरों में पूछा जा सकता था कि अमीरात की राजधानी कौन सी है। पर नंबर 67, द बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर 2024 वाज कन्फर्ड ऑन टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन द एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024। कृषि लीडरशिप पुरस्कार 2024 में निम्न में से किस राज्य को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य 2024 पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। नागालैंड को जो है 2024 में जो है बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर 2024 में जो है पुरस्कृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मोनेस्ट्री इन स्पीति। जो स्पीति है उसमें कौन सा मठ जो है वो सबसे बड़ा मठ है। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, की जो मठ है वह लाहौल स्पीति में जो है वह सबसे बड़ा मठ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इज गोइंग टू बी इस्टेब्लिश्ड अंडर राष्ट्रीय गोकुल मिशन। जो हिमाचल प्रदेश है उसमें से जो किस जिले को जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया जाना है। तो जो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, उन्ना। उन्ना को जो है
राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70, नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो जो नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान था वह किस स्थान पर स्थापित किया गया। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, पटियाला। पटियाला में जो है नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है स्थापित किया गया। इसी के साथ जी के पार्ट जो है ख़त्म होता है। तो अब नेक्स्ट पार्ट है इंग्लिश का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश पार्ट के क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 71 है, यू शुड नॉट ब्लैंक द रोस्ट। तो जो इसका राइट आंसर है वह है यू शुड नॉट अज्यूम द रोस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 72, द टीचर सेड वी ऑनेस्ट। इसका डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, द टीचर एडवाइज्ड मी टू बी ऑनेस्ट। क्या कर रहा है इसमें, जो टीचर है वो एडवाइस दे रहा है किसी को भी कि क्या हमें क्या रहना है, बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 73, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। इसका एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाने हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, फाइंड द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, दे आर गो टू द मार्केट नाउ। ये इसमें क्या है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 75, ही इज डैश बेस्ट प्लेयर इन अवर टीम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द ही इज़ द बेस्ट प्लेयर इन अवर टीम। तो क्वेश्चन नंबर 76, सी हैज़ ओनली अ डैश टाइम लेफ्ट बिफोर द एग्ज़ाम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी, लिटल। सी हैज़ ओनली अ लिटल टाइम लेफ्ट बिफोर द एग्ज़ाम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, दिस बुक इज़ माइन बट दैट वन इज़ डैश। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, देयर। दिस बुक इज़ माइन बट दैट वन इज़ देयर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, बाय द नेक्स्ट मंथ वी सेल डैश द प्रोजेक्ट। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हैव कंप्लीटेड। बाय द नेक्स्ट मंथ वी सेल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, सी सेड डू यू लाइक आइसक्रीम। इसका डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर वी, सी आस्क्ड इफ़ आई लाइक्ड आइसक्रीम। क्या कर रहा है, पूछ रहा है, इसमें क्या कर रहा है, पूछ रहा है आई लाइक्ड आइसक्रीम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू। इसमें क्या करना है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, ओपन द डोर। इसमें क्या पूछा है, एक्टिव टू पैसिव वॉइस। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर वी, लेट द डोर बी ओपनड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी मस्ट कंप्लीट दिस वर्क बाय मंडे। इसमें भी क्या पूछा है, एक्टिव टू पैसिव वॉइस। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, दिस वर्क हैज़ टू बी कंप्लीटेड बाय हर बाय मंडे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस। इसमें क्या बताना है हमें, इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर वी, दे वॉज गोइंग टू स्कूल। बाकी सारे के सारे क्या है, करेक्ट है, पर जो ऑप्शन नंबर वी है वो क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 84, वुड यू लाइक डैश शुगर इन योर टी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनी। वुड यू लाइक एनी शुगर इन योर टी। क्वेश्चन नंबर 85, दे डैश अ न्यू कार लास्ट वीक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वॉट। दे वॉट अ न्यू कार लास्ट वीक। क्वेश्चन नंबर 86, दिस इज एन डैश बुक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंटरेस्टिंग। दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो पिक आउट द करेक्ट वन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू डैश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द जॉब। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 88, पिक आउट द राइटली स्पेल्ड वर्ड। सो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर वी, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है? राइटली स्पेल्ड वर्ड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंसेस अमंग द फॉलोइंग। सो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, आई एम लिविंग हेयर फ्रॉम 10 ईयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। राइजिंग प्राइस आर डैश यूनिवर्सल फिनोमिनन। तो उसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, एन। राइजिंग प्राइजेस आर एन यूनिवर्सल फिनोमिना। तो इसी के साथ जो ऑल ओवर जितना पेपर था एचपी पुलिस कांस्टेबल का वो हमने सॉल्व कर दिया है। तो आप सभी अपने आंसर जो है इसमें देख सकते हैं कि आपने कितने करेक्ट करे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ, इतिहास यात्रा विद राम। सो थैंक यू सो मच।